can say NLP wala part. So as we know, NLP NLP is one of the important topics of our syllabus in artificial intelligence. This plays a very important role. As you know, NLP it is nothing but it is the natural language processing, right? So NLP basically what it is the now let us understand some introduction of NLP. So it is a very important topic of the artificial intelligence. See, we are talking about the artificial intelligence. So artificial intelligence is what? It is nothing but the concept of intelligence in the machines, right? The human intelligence in the machines. What we do, we instill the intelligence into the machines, the human intelligence into the machine. So now, natural language processing, that means who can speak the different language? Human beings, right? We human beings speak different languages. It is English, Hindi, French, Marathi, Gujarati, and there are more. There are many more languages which we speak, right? So this is the quality, or you can say this is the task or function of what a human being. So how we can incorporate that function or instill that function, that feature into a machine, that is called as NLP, that is natural language processing. Okay, so here that means our machine will talk in the will speak in the languages, different languages. It will capture the language. Since machine is, we say that machine is a non-living thing. Okay, and non-living thing हमें language को समझती नहीं है, but in this case it is going to talk with us, it is going to understand our language also. जो हम बात कर रहे हैं वो भी उसको समझेगा, and whatever that she wants to say, or you can say जो भी वो machine कहना चाहता है, it will, that also we will understand. That means both human and machine will understand each other's language. Okay, that means that barrier which is there between the human being and the machine, that language barrier, that is now being reduced with the introduction of NLP, or you can say by this concept NLP. When this came into existence, this was a barrier which was there in human and machine. So that means वो language का. So that also uh, went right now. So here the definition is natural language processing refers to AI method of communicating with an intelligent systems using a natural language such as English. यहाँ पर example the English का, but now we know that the natural language processing have come in the different multiple languages, Hindi and other languages also, right? But basically English से शुरुआत हुई थी, the first language which was there. जो कि NLP हमने डेवलप NLP में हमने जो देखी थी वो थी English, okay? So it refers to the AI method of communicating with an intelligent system. That means we will communicate with a system, that will be a system machine, okay, with intelligent machine, means who can understand our language, who can understand, who can analyze our language, who can capture each and every sentence, okay, using a natural language such as English. This is a natural language, right? Processing of natural language is required when you want an intelligent system like robot to perform as per your instructions. Of course, definitely, if you want any robot to follow your instructions, or if you want a robot to work according to your requirements, or according to your you know that decisions, or you can say according to your mind, when you want these things, then what you're required to do, you're required to understand this basic concept basically. Okay, the basic concept, that means you can say कि प्रोसेसिंग कैसे होती है, राइट? तो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने आना चाहिए अगर हम लोग कभी भी इंटेलिजेंस सिस्टम के साथ चाहते हैं कि हम वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को माने. Suppose if I am giving some instructions that if I am giving an instructions that open camera, okay, suppose to my robot. So that time, when that robot will understand, then when that robot will obey my instruction, only when there is a processing of that language. That means whatever I am speaking, whatever language I am speaking, whether that robot is able to understand or not. Okay, if it is able to understand the language, then only it can perform the actions. Okay, based upon my instructions. Okay, when you want to hear decisions from a dialogue based clinical expert systems, etc. Okay, then we have field of NLP involves making computers to perform useful tasks with the natural language human use. Okay, so this field, that is NLP, natural language processing, it involves the making computers to perform useful tasks. That means the computers will perform the tasks which are very useful. Okay, with the natural language.
as human use. Okay, like the language which is being used by the human being, that is called as natural language, right? Natural language means the one language, the language which is spoken by the human beings, right? The input and the output of an NLP system can be speech and written text. Okay, so this could be an input. So in an NLP system, when we are talking about the NLP system, that time we can say that input of the NLP system can be a speech, okay, or it can be a uh, text also, right? Written text. That means here it can be a voice also, right, in any language, or it can be a text also. That means it can capture the text and it can capture the voice. Okay, that means speech with recognition and the text recognition, right? Now, what are the components? Let's understand what are the components of NLP. So there are multiple components. There are different components of NLP that we need to understand. Okay, those components. So there are two components of NLP basically, okay, that we are going to use in NLP concept, and that is very important. That plays an important role. तो दो ही component है NLP के, natural language processing के सिर्फ दो component है जो कि हमें याद रखते हैं. So which are those two components? First component is natural language understanding, that is NLU. Okay, this is a component है natural language understanding, और दूसरा है natural language generation. Okay, एक तो होता है natural language understanding, मतलब natural language समझ में आना चाहिए, और दूसरा नेचुरल लैंग्वेज अपने आप अंदर से आना चाहिए, राइट? लाइक अगर एग्जांपल हम देखें, अगर सपोज किसी बच्चे को, कोई बच्चा छोटा रहता है, तो हम लोग उसको सिखाते नहीं है, ओके, मतलब वी डोंट मीन ऐसा हम लोग एकदम स्पेसिफिकली उसको ये हर एक चीज नहीं सिखाते कि ऐसा करो ऐसा करो. वक्त के साथ साथ धीरे वो सीख जाता है, राइट? हर एक चीज, इवन दो हम उसको सिखाते हैं एबीसीडी वगैरह ये सब चीजें, बट जो नेचुरल लैंग्वेज है, जो जो कि एक हमारी मातृभाषा होती है, कि मदर टंग, तो वो जो है अंदर से आती है. ओके, नो वन टीचेस. So that is what you can say, that natural that understanding, and also you can say generation, that is the natural language generation, that is NLG. मतलब natural language generate होना चाहिए खुद से. That means if I am talking to a system, so that system जरूरी नहीं कि मैं उसको जितना सिखाया है उतना ही बोले, नेचुरली उसके अंदर से खुद आना चाहिए. लाइक सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो सामने से उसका से बात करना चाहिए. सपोज इफ अ पर्सन इज कमिंग टू मी, ओके, एंड a person is talking to me about some topic, so I will not think about it कि ये टॉपिक हमने पहले बात की है कि तो सेम वैसे ही मैं बात करूँ. नो, आई विल जस्ट स्ट्रेट अवे आई विल गिव द आंसर वॉट एवर द टॉपिक इज. ओके, कुछ भी टॉपिक रहे तो हम लोग उसके बारे में उसके अनुसार हम आंसर करेंगे. अकॉर्डिंग टू दैट वी विल आंसर. ओके, वी विल स्पीक, we will tell, we will talk, right? So this is how an NLP system also should work, and this is how it works actually. That means whenever you are interacting with that NLP system, that time it will generate the language naturally. Okay, that means the topic, suppose कुछ भी आप बात करो उससे कि ये है वो है ऐसा ऐसा, so at least it will understand that in some way, कैसे ऐसे करके जो भी algorithm use करके अपने there are some words use करके जो dictionary में, and accordingly it will frame the sentence and it will talk to you. That means like a human being. एक तो लगेगा नहीं कि आप किसी मनुष्य सॉरी किसी मशीन से बात कर रहे हो. It will feel like you are with talking with a human being. सबसे best example, everyone knows Google Assistant. Okay, ये सबसे best example है. Alexa है another example. There are so many voice assistant, right? We have. So that is the best example we can say. तो Google Assistant का example अगर ले, तो आप उससे कुछ भी पूछो, it will answer all our questions, all our queries. At least it feels like that some human being is there sitting there, and that person is talking to me. Means लगता ही नहीं कि we are talking to a machine. If you say that sing a song, वो गाना भी गाती है. If you say please स्पीक अ जोक सुनाएगी. इफ यू से दैट मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया, तो इट विल टेल मी, इट विल मोटिवेट मी. मींस ऐसा नहीं बोलेगी कि मैं क्या करूँ, या फिर ऐसा नहीं बोलेगी कि मुझे नहीं समझा. इट विल गिव सम ऑफ द आउटपुट. ओके, तो मैं एक ह्यूमन बीइंग जैसा सहारा देता है उस टाइम पे. अगर हम कुछ तकलीफ किसी को बता रहे हैं, तो एक इंसान उसको समझता है एंड उसको पता है कि उस टाइम पे क्या बोलना है. नेचुरली वो अंदर से आता है. तो सिमिलरली द मशीन ऑल्सो जनरेट्स दैट. ओके, and also it understands, first of all it understands, that is why it generates. Okay, उसको समझता है, तभी वो उसको समझता है कि the सामने वाला person is sad, so accordingly वो motivation या फिर ऐसा कुछ मैसेज it will speak कि हाँ ऐसा है तो आपका ये प्रॉब्लम कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा. मीन्स वो समझ रहा है उसको. दैट मीन्स फर्स्ट इट इज अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज जनरेटिंग समथिंग नेचुरली. So understanding involves the following task: mapping the given input in natural language into useful representation, of course. So अगर जो भी input दिया गया है उसको mapping करना बहुत important है. Okay, that means
जो इनपुट होता है इसके अंदर उसको मैप करना पड़ता है, राइट? सपोज आई हैव गिवन सम इनपुट, ओके, एंड वो उसको फर्स्ट मैपिंग करना पड़ेगा समझने के लिए व्हाट द सामने वाला पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक, व्हाट द सामने वाला पर्सन इज ट्राइंग टू टेल। सपोज मैंने उसको बोला, सपोज मैंने अपने गूगल असिस्टेंट को बोला सेट अलार्म एट, या फिर मैंने उसको बोला कि हाँ, या फिर सपोज मैंने बोला कि प्लीज वेक अप मी एट 9:30 AM, या फिर ये तो ज्यादा हो गया, वेक अप मी एट 7:30 AM, सपोज मैंने ऐसा बोला। तो व्हाट विल हैपन नाउ हियर, अवर जो गूगल असिस्टेंट जो है हमारा, तो वो पहले उसको समझेगा कि एक्चुअली सामने वाला पर्सन क्या कहना चाहता है, दैट मीन्स व्हाट इज द मीन्स द मैपिंग विल बी डन, दैट मीन्स मैपिंग विल बी ऑफ द गिवन इनपुट, लाइक आई हैव गिवन इनपुट सम टेक्स्ट, ओके, कुछ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ वॉइस आई हैव गिवन इनपुट, मैंने क्या दिया है, प्लीज फर्स्ट वर्ड सेट अलार्म एट 9:30 AM, ओके, और अलार्म फॉर 9:30 AM टुमारो, सपोज मैंने ऐसा बोला टुमारो, please set alarm for tomorrow at 9:30 AM. So now what it will do, it will map these inputs to in order to understand what the user, or you can say what the uh, human is trying to speak. So यहाँ पे first it will capture कि हाँ please means someone is requesting, okay, because it will suppose first word is please, so it will check this word in its dictionary कि please का मतलब क्या होता है, that means it will understand कि हाँ please बोल रहा है मतलब someone is requesting, तो इससे एक भावना समझ में आ जाएगी सामने वाले की कि हाँ ये रिक्वेस्ट कर रहा है, so that means now it will understand कि सामने वाला जो ह्यूमन बीइंग है वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी चीज के लिए। then second thing that we will have, that is please set, that means set, that means now it will understand that something has to be set। now what has to be set, that अभी तक से नहीं उसने देखा, बट उसको इतना पता समझ में आया, यस कुछ तो लगाना है, दैट मीन्स कुछ तो हमें यहाँ पे सेट करना है, मीन्स आई हैव टू डू समथिंग, सेटिंग वाला पार्ट। देन नेक्स्ट alarm, now this alarm, now by this term it will understand कि हाँ alarm set करना है, okay, please set alarm, so now it will map these words, right, please set alarm, बट अभी भी उसको समझा नहीं कि अलार्म कब का लगाना है, अगर तब हमने सिर्फ इतना बोला उसको प्लीज सेट अलार्म, so it will ask me a question in return, at what time should I set the alarm, ऐसा पूछती है वो, तुम लोग कभी ट्राई करके देखो, you might have tried or you should try once, you just tell her और जो भी है वो मशीन इट कि please set alarm, so it will not set the alarm directly, no, it will ask you that at what time should I set the alarm, because उसको समझ में आया अलार्म लगाना है, यही बोलना चाहता है हमारा सामने वाला, वो रिक्वेस्ट कर रहा है अलार्म लगाने की, बट still at what time he wants or he or she wants me to set the alarm, that is not yet clear, right? So for that it will again आगे के सेंटेंस अगर हमने बोले तो फिर वो उसको कैप्चर करेगा, नहीं तो फिर वो पूछेगा, पूछेगी वट एवर इट इज, जो भी है वो गूगल असिस्टेंट, इट इज अ मशीन, तो इट लगाएंगे हम लोग। तो कि अलार्म सेट करना है कि नहीं, मतलब कितने टाइम का करना है, अगर मैंने हिंदी में बोला कि अलार्म लगाओ, तो अलार्म लगाओ, अलार्म और लगाओ दोनों को मैप करेगा, तो अलार्म लगाओ ये उसको समझ जाएगा, लेकिन कब का लगाना है वो पूछेगा, कितने बजे का अलार्म लगाऊं मैं, दैट टाइम यू हैव टू आंसर, सपोज मैंने बोला 7 o'clock, so now it will understand कि हाँ अभी वहां पे आपको ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा पूरा सेंटेंस कि 7 बजे का अलार्म लगाओ, नो, उसको समझेगा कि मतलब हाँ ये अलार्म की ही बात कर रहा है, ओके, तो मतलब उसके प्रीवियस डेटा के हिसाब से वो नेक्स्ट डेटा को भी समझ जाएगा कि ये कंटिन्यू हो रहा है, लाइक एक इंसान के बारे में बात हो रही है, तो वो इंसान से हम बात करते हैं, यार अलार्म लगाना, तो सामने वाला पर्सन पूछे कितने बजे का, तो बोलूँगा 8 बजे का, राइट, तो मतलब ह्यूमन जो सामने वाला पर्सन उसको समझ रहा है कि हाँ ये अलार्म की बात कर रहा है। सेकंड टाइम मैंने ये नहीं बोला कि सपोज मैंने फर्स्ट टाइम बोला अलार्म लगाओ, तो उसने बोला कितने बजे का, फिर मैं सेकंड टाइम फिर से नहीं बोला ये चीज की अलार्म लगाओ 8 बजे का, मैंने सिर्फ इतना बोला 8 बजे का, तो वो समझ जाएगा कि 8 बजे का अलार्म लगाना है, क्योंकि उसने पहले वो चीज पूछा था। तो लेकिन ये चीज मशीन को क्या समझती है, मशीन को क्या समझ रहा है कि वही कन्वर्सेशन चालू है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव अ बेस्ट एग्जाम्पल, कि अगर सपोज आप किसी के बारे में आप पूछो कभी अपने गूगल सिस्टम को पूछ के देखो, तो किसी से पूछो हु इज अमिताभ बच्चन, सपोज पूछो हु इज अमिताभ बच्चन, तो वो बताएगी कि अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर और इंडियन टीवी एक्टर, ये वन और वट एवर फलाना ठिकाना। उसके बाद उसको पूछो व्हाट इज हिज एज, ऐसा मत पूछो व्हाट इज अमिताभ बच्चन एज, नो व्हाट इज हिज एज, तो तो ऐसा आंसर करिए अमिताभ बच्चन एज इज इतना, एंड उसके पूछो व्हाट इज हिज फर्स्ट मूवी, विच इज हिज फर्स्ट मूवी, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछना है अमिताभ बच्चन के बारे में पूछते रहो, बिना नाउन यूज किए, सिर्फ प्रोनाउन यूज करो ही, then also that assistant will answer the question about the Amitabh Bachchan only.
ऐसा कैसे? दैट मीन्स अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट मीन्स ह्यूमन की जैसा इंटेलिजेंस के पास है, उसको ये चीज पता है कि सामने वाला पर्सन इसके बारे में बात कर रहा होगा, तो इसी का क्वेश्चन पूछेगा वो। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि नया क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैंने उसको पूछा तो वो अपने आप उसको समझेगा कि हाँ, ये अमिताभ बच्चन के बारे में बात कर रहा है स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, एंड अगर फिर मैंने चेंज किया कि व्हाट इज द ऐश्वर्या राय एज, तब वो ऐश्वर्या राय का ढूंढेगा। दैट मीन्स इफ आई एम स्पेसिफाइंग द नाउन, तो अगेन दिस आल्सो कम्स अंडर एनएलपी, मतलब नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन है तो इट विल रिलेट टू इट्स प्रीवियस सेंटेंस, मतलब प्रीवियस सेंटेंस क्या बोला गया था अमिताभ बच्चन के बारे में। तो वो क्या करेगा, जो हमारा एनएलपी है सिस्टम, जो भी हमारा गूगल असिस्टेंट है, उसको ये चीज समझेगा कि ये जो बात कर रहा है बंदा, वो यहाँ पे उसने यूज किया व्हाट इज हिज एज, हिज उसने एक प्रोनाउन यूज किया है। दैट मीन्स ये उससे रिलेटेड हो जो मैंने प्रीवियसली इन्होंने क्वेश्चन पूछा था अमिताभ बच्चन के बारे में, राइट। तो उससे रिलेटेड ही होगा, तो उससे रिलेटेड वो क्वेरीज देगा, तो उसको ये समझेगा। दैट मीन्स वो मैप कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। इस सेंटेंस के एक वर्ड को, प्रोनाउन को उसके नाउन से मैप कर रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर नोन मैपिंग द गिवन इनपुट इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इनटू द यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। दैट मीन्स एक रिप्रेजेंटेशन में वो क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। Then we are analyzing the different aspects of the language. Of course, different aspects क्या क्या है लैंग्वेज के, वो भी बहुत जरूरी है। ओके, लाइक डिफरेंट लैंग्वेज का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, राइट। सपोज अगर मैंने बोल दिया कि सपोज मैंने बोल दिया एन एग्जाम्पल यू कैन टेक, अगर इंग्लिश में हम बोले तो उसका एक फॉर रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, हिंदी में बोला उसका रिप्रेजेंटेशन अलग होता है। सपोज मैंने बोला कि शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। ओके, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, बट हिंदी में बोलते हैं वह स्कूल जाती है। वह स्कूल पहले आ रहा है और जाती है बाद में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में शी गोज मतलब वह जाती है पहले आ रहा है और स्कूल बाद में आ रहा है, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका मीनिंग सेम है। तो दिस इज हाउ द फॉर्मेटिंग, दैट मीन्स द एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज इज डिफरेंट, सो दैट आल्सो इट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि किसके लिए क्या है। ओके, वो भी समझ में आना चाहिए। And natural language generation, second component, NLU and NLG. Okay, natural language generation, natural language uh, generation, and natural language understanding. You. It is the process of producing meaningful phrases and sentences in the form of natural language from the some internal representation. Now, what does it mean? It is the process of produ- uh, it is the process of producing meaningful phrases and sentences in the form of natural language from some internal representation. नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन को ये बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन का मतलब ये होता है कि हियर वी आर प्रोड्यूसिंग some meaningful sentences, some meaningful phrases from the given information or you can say given data that we have। मतलब यहाँ पे अपना जो सिस्टम होगा, जो अपना जो मशीन होगा, एआई एजेंट जो भी होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, वो क्या करेगा, वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। मतलब कि जो भी इनपुट दिया है यूजर ने, अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको समझेगा और उसके अनुसार वो जो आंसर करेगा ना, उसको उसको जनरेट कौन करेगा, उसको जनरेट करने के लिए वो एक ऐसा सेंटेंस ढूंढेगा जो मीनिंगफुल हो। दैट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता है कि शी गोज टू स्कूल, ये बराबर है शी स्कूल गोज टू शी या फिर स्कूल गोज टू हर, ऐसा नहीं बोल सकते। दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, रॉन्ग सिमेंटिक। So we have to produce a sentence which has a meaning, okay, which is a meaningful sentence. So it is a process of producing a meaningful sentence and a phrases from the internal representation. Internal representation मतलब कि whatever that model NLP मॉडल हैज, कि जो भी NLP मॉडल के अंदर है पहले से, लाइक उसके पास जो भी डिक्शनरीज है वो जो यूज कर रहा है, डेटाबेस है, जो भी वर्ड्स है उसके पास, जो भी सेंटेंसेस है उसके पास बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स फीड किए गए हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस फीड किए गए हैं, बहुत सारे उसके अंदर मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच फीड किया गया, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एवरीथिंग इज फीडेड इनटू इट। और उनके उस सब वो सब जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर, उसको यूज करके उसको उसकी सहायता से वो क्या करेगा, एक प्रॉपर सेंटेंस को फॉर्मेट करता है। तो इसके लिए जब भी हम कुछ भी गूगल को या फिर गूगल असिस्टेंट को हम पूछते हैं, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर देता है, हम कैसे भी आंसर देता नहीं है वो। अगर मैं उसको पूछा कि व्हाट इज दिस, या फिर मैंने उसको कुछ क्वेश्चन पूछा, तो इट विल आंसर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। सपोज मैंने बोला व्हाट द टाइम नाउ, तो इट विल नॉट से ऐसा कि 9 AM टाइम इज, या फिर 9 AM इज टाइम। नो, द टाइम इज 9 AM ऐसा बोलेगा।
now the time is 9 a.m. What is the temperature right now? तो ऐसा बोलेगा कि the temperature right now is 34 डिग्री, ऐसा नहीं बोलेगा 34 टेम्परेचर डिग्री नाउ टाइम, ऐसा नो। सो एक प्रॉपर सेंटेंस, एक प्रॉपर फॉर्मेट पे इट विल फ्रेम दैट सेंटेंस। किसके मतलब होगा, द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर है ऑलरेडी पहले से। नो अभी इसके अंदर कुछ चीज आती है एनर्जी के अंदर, देयर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच इन्वॉल्व्स व्हिच कम्स अंडर द एनर्जी। ओके अभी एनर्जी को बिकॉज को जनरेट करना है, बिकॉज यार एक मशीन को एक सेंटेंस बनाना है, एक ह्यूमन बीइंग को सेंटेंस बनाना तो आसान होता है। एक बच्चे, अभी हम लोग एनर्जी को थोड़ा बच्चों से देखेंगे, अगर एक ह्यूमन बीइंग को ऐसा एक बच्चे के नजरिए से देखें अगर हम लोग, तो जब हम शुरुआत, जब हम छोटे थे, तो हम लोग के लिए सेंटेंस बनाना थोड़ा मुश्किल होता था, राइट? इंग्लिश में, राइट? वी यूज्ड टू राइट माई सेल्फ, इफ समवन रिमेंबर। तो माई सेल्फ भी हमें थोड़ा टफ लगता था वो टाइम, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एक्चुअली शुरुआत कर रहे थे हम लोग सेंटेंस बनाने की। हम लोग सीखते थे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आई एम अ बॉय, माई नेम इज दिस एंड दिस। दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग फ्रेम करते थे एक एक वर्ड को, कि माई के साथ नेम होगा, फिर उसके बाद इज आएगा, फिर मेरा नेम आएगा, ऐसा नहीं आएगा माई नेम आकाश इज। तो हम लोग वहाँ पे सीखते थे, राइट? कि हाँ, लेकिन अभी हम लोग को ये सब सीखने की जरूरत है कि अभी एकदम एकदम हम फैमिलियर हो गए, एकदम अच्छे से आ गए, फटाफट बोल देंगे माई सेल्फ, माई आई एम अ बॉय, माई नेम इज आकाश, I study in this, blah, 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 whatever. So this is how a AI machine also learns, or NLP model also learns like a child. Okay, children के जैसा, बच्चों के जैसा, right? So it is again, so we have to think as a मशीन पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से वो बचपन में हम छोटे थे तो हम किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस या किसी भी लैंग्वेज के वाक्य सीखते थे कि हाँ इसके साथ ये यूज होता है, हम लोग को प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक एक चीज दो दो चीज करें। तो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, दैट इज व्हाई वी से नेचुरल, ना, दैट दिस कम्स विद नेचुरली, ओके, इट कम्स नेचुरली। So the same thing should happen with the machine also. It should come naturally. So we have text planning first of all. Text planning, right? No, text planning, it includes retrieving the relevant content from the knowledge base, of course. Text planning, that means suppose if some input has arrived, okay, or you can say there is some input, okay, from the user, or you can say from a human being now, or anything, okay, which is the input. Suppose I have recognized a speech. Accordingly, now I have to do what? I have to generate the language, or I can say I have to speak something. That means I am a machine, for example, and I want to speak something. So I want to do what? I want to as of course. So right, what was I saying? Retrieve relevant content from the knowledge base, right? Text planning, huh? Suppose as being a machine, like it's an NLP model, I am a machine, right? So I will talk. So what for generating some language, or you can say for speaking something in a particular language. First thing that I have to do, I need to plan my text. Text planning must be there. That means I have to plan my text. That means how I will means how my text will be and which kind of text I will use. Right? For example, I have given the exam. I have given you that example about set the alarm. Please set the alarm at 9:30 a.m. tomorrow. So now here relevant information will be uh, that retrieved, right? Text line, it includes the retrieving the relevant content from the knowledge base. That means it will suppose if the task is done. So it suppose, for example, I have told you that who is Amitabh Bachchan. Suppose I have asked my Google Assistant. So she will answer Amitabh Bachchan is this and this. And suppose I have asked what is his age. So again, that Google Assistant is going to talk about the same person. That is Amitabh Bachchan only. So now retrieving the relevant content and presenting it, okay, in the form of voice, you can say. So that is called as text planning. That means यहाँ पे वो क्या करेगा, अपने नॉलेज बेस में करेक्ट सेंटेंस को ढूंढेगा। दैट मीन्स रिट्राइव करेगा करेंट वर्ड को, ओके, रेलेवेंट कंटेंट को। अगर सपोज अमिताभ बच्चन के बारे में पूछा है, तो अमिताभ बच्चन के बारे में ढूंढेगा, राइट, अपने नॉलेज बेस में। अगर और उससे हो सकता है वो देखे कि क्या पहले से क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या। मतलब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछ रहे होते हैं, वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट, लाइक व्हाट इज माय नेम, या फिर व्हाट इज योर एज, या फिर हु आर यू, या फिर आप कौन हो, आपका नाम क्या है, गोलर सिस्टम। तो ये सब क्या बहुत रेयर, बहुत मतलब रेलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन, विच आर वेरी वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये उसकी नॉलेज बेस में ऑलरेडी स्टोर है कहीं ना कहीं। अगर ये सामने वाला बंदा ऐसा क्वेश्चन करता है, उसको पता है कि आंसर देना है। सो
वो रेलेवेंट कंटेंट ही ढूंढेगा अपने नॉलेज बेस से। दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट प्लानिंग। मतलब कि अगर पूछा है, अगर सपोज मैंने बोला है कि प्ले दिस सॉन्ग, ओके, सो मैंने बोला भाई एलेक्सा का एग्जांपल हम देखते हैं, तो मैंने बोला एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, तो प्ले द सॉन्ग धीमे धीमे, राइट। तो अभी उसको समझेगा कि अभी धीमे धीमे बोला तो धीमे धीमे ढूंढेगा, वो कोई दूसरा गाना नहीं ढूंढेगा, राइट। सो द दैट टेक्स्ट इट विल, सो ऐसा वो बोलेगा, बोलेगी या जो भी, प्लेइंग धीमे धीमे, प्लेइंग धीमे धीमे ऐसा वो बोलेगी। सो दिस प्लेइंग धीमे धीमे कहाँ से आया, ये रिलेवेंट कंटेंट है, राइट। जो हमने इनपुट दिया उसके हिसाब से उसने आउटपुट दिया, हमें कुछ अलग दिया क्या, नहीं। तो दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट प्लानिंग, मतलब वो टेक्स्ट वही देगा जो रिलेवेंट होगा, राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस प्लानिंग। तो ये हो गया टेक्स्ट का, मतलब वो ढूंढेगा एक सेंटेंस, एक एक टेक्स्ट, राइट। टेक्स्ट की क्या क्या है, लाइक प्लेइंग, या फिर सेट अलार्म सेट, या फिर अमिताभ बच्चन के बारे में, या फिर उसकी एज के बारे में, वॉट एवर इट इज, जो भी है। नाउ sentence planning. Now, it includes choosing required words, forming meaningful phrases, setting tone of the sentence. Now, here, now in this phase, what will happen in this step? The sentence will be planned. That what sentence to be spoken, right? What sentence to be spoken. Okay. So for that, what it will do? It will choose the required words first of course, right? कि क्या क्या जरूरत है इस सेंटेंस को करने के लिए, वर्ड वर्ड कंप्लीट करने की। सपोज मैंने पूछा कि व्हाट इज माय एज, तो ऐसा होता है ना हम लोग के उसमें गूगल असिस्टेंट में हमारा एज सेव रहता है क्योंकि हमने ईमेल आईडी से लॉग इन किया। तो वो बोलते हैं आकर्ष रघुवंशी एज इज 20, या फिर व्हाट इज माय डेट ऑफ बर्थ, तो आकर्ष रघुवंशी डेट ऑफ बर्थ इज 2 अगस्त 2000, राइट। सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, टेक्स्ट को चूज किया कि क्या क्या टेक्स्ट मुझे इसका आंसर देने के लिए लगेंगे। तो व्हाट इज माय एज या फिर व्हाट इज माय बर्थडे, तो वो अपने बर्थ डेट, वो अपने डेट ऑफ बर्थ, वो अपने रेलेवेंट इन्फो, मतलब अपने वो क्या करेगा, अपने नॉलेज बेस चेक करेगा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, वो चेक करेगा कि हाँ आकाश के बारे में इंफॉर्मेशन है, राइट। तो वो क्या करेगा कि उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन फेच करेगा, वो वर्ड्स ढूंढेगा जो कि इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हेल्प करेगा। लाइक उसने मेरे को एज के बारे में पूछा तो उसके लिए मुझे इस तरह सेंटेंस फ्रेम करना चाहिए। उसमें एक वर्ड आना चाहिए एज, उसमें एक वर्ड आना चाहिए आकर्ष रघुवंशी, मतलब उसका नाम जिसके एज हम बता रहे हैं, फिर यूर एज, उसमें आना चाहिए हेल्पिंग ऑफ इज, ठीक है, दिस, और फिर एक एज आना चाहिए। दिस आर द डिफरेंट वर्ड्स वी शुड कम, तो वो टेक्स्ट प्लानिंग में आएगा। अभी इसको फ्रेम कैसे किया जाए वो भी सोचना है, तो वो सेंटेंस प्लानिंग में आता है। तो मतलब इसको किस तरह से बोला जाए वो सोचेगा, वो सोचेगी गूगल असिस्टेंट, ठीक है, इसको किस तरह से बोला जाए वो भी सोचेगी, राइट। वो तो उसको किस तरह से बोला जाए, तो सोचेगी कि द आकर्ष रघुवंशीज एज इज 20, ऐसा बोला जाए। या तो ऐसा नहीं बोलेगी एज इज 20 ऑफ आकर्ष रघुवंशी, या फिर एज ऑफ 20 इज आकर्ष रघुवंशी, ऐसा नहीं। तो एक कैसे उसको सेंटेंस को फ्रेम करना है मीनिंगफुल फ्रेज, मीनिंगफुल सेंटेंस में, वो यहाँ सोचते हैं। टेक्स्ट रियलाइजेशन, इट इज मैपिंग सेंटेंस प्लान इनटू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। नॉट टेक्स्ट रियलाइजेशन, एक्चुअली जो प्लान किया है उसने किस तरह से बोलना है उसको एक्चुअली वहाँ पे क्या करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली। मतलब अभी तक सिर्फ प्लान किया कि सेंटेंस ऐसे बोला जाएगा, बोला नहीं। लाइक मैंने एग्जांपल, सपोज एग्जांपल टीचर मुझे कुछ 5 क्वेश्चन पूछने वाले, सपोज मैंने सोच के रखा है मन में कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं इस तरह से आंसर करूंगा, और जब एक्चुअली मैंने वो आंसर किया तो उसको बोलेंगे टेक्स्ट रियलाइजेशन। दैट मींस एक्चुअली माय आइडिया, माय प्लानिंग, आई हैव इम्प्लीमेंटेड इट इनटू अ रियल सिनेरियो, यू कैन से सेंटेंस, और यू कैन से इट इज अ स्ट्रक्चर। एनएलयू इज हार्डर देन एनएलजी, ऐसा उन्होंने बोला है। क्यों बोला है वो हम आगे देखेंगे। एनएलयू जो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना जनरेट करने से ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो नेचुरल लैंग्वेज जो होता है उसको समझना ज़्यादा मुश्किल है, बोलना मुश्किल नहीं है, राइट। मतलब कि एक मशीन के लिए, अगर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इजीली जनरेट कर सकता है नेचुरल लैंग्वेज, जो भी, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, वट एवर। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ह्यूमन बींग सामने वाला बोल रहे हैं, उसको समझना मुश्किल है। ऑफकोर्स ऑब्वियसली बात है, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट, बिकॉज मशीन की अगर बात करें तो सब मशीन एक ही होते हैं, राइट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन विल बी सेम, राइट। तो उन तो वो सही, उनका जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो मशीन है, उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, उनका डिक्शनरी, उनका मतलब वर्ड्स वगैरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक इंसान जो है डिफरेंट तरह के होते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग होते हैं, ओके, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन से उनका उनका बोलने का तरीका होता है। कोई कोई नॉट को नाट बोलता है, कोई कोई नन, या फिर कोई कोई कॉल्ड को कार्ड बोलता है, इट इज कार्ड एज, या फिर कोई कोई एन को यन बोलता है, राइट। तो मतलब डिफरेंट पीपल के डिफरेंट जो है
क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, या फिर उनका बोलने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए अभी ये चीज सामने वाले मशीन को या फिर एआई को, जो एनएलपी मॉडल है, उसको समझना चाहिए। दैट मीन गूगल असिस्टेंट को फिर भी समझ जाता है, भले हम कैसे भी लैंग्वेज में बोले, लेकिन वो बराबर कैप्चर करता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग कितनी मुश्किल होती होगी उसको करने, लेकिन स्टिल वो किया है उसने। दैट मीन्स इसलिए हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज वो चीज, वो फीचर में डाला है, इंस्टिल किया उस मशीन में, कि वो भले कितने भी लोग हो, कितना भी टोन हो, कैसे भी बोले, इट विल अंडरस्टैंड, इट विल कैप्चर। पहले इतना एक्यूरेट नहीं था, लेकिन अभी जो गूगल वगैरह है देखेंगे अगर उसमें, तो एकदम एग्जैक्टली बराबर टेक्स्ट वो क्या करता है, कैप्चर करता है। भले हम कैसे भी बोले, रॉन्ग भी बोलेंगे तो भी वो करेक्ट कैप्चर करेगा। कभी कभी करेक्ट रॉन्ग करते हुए पता लगे, स्टिल दे आर वे सो मेनी, दे आर लिटिल बिट, नॉट सो मेनी इश्यूज, बट स्टिल वो ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का इंजीनियर्स। बट स्टिल बहुत बेटर बनाया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस को, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज एक मशीन को इंसान की भाषा समझाना, मतलब आई मीन सीरियसली इट्स ब्यूटीफुल। सोचो एक निर्जीव वस्तु को एक एक इंसान की लैंग्वेज समझाना, मतलब बहुत बड़ी बात है। एक बार के लिए एनिमल को लैंग्वेज समझाना ह्यूमन का मुश्किल होता है, मशीन को कैसे समझाएंगे? एक एनिमल तो एक लिविंग थिंग है, जीवित प्राणी है, जो कि उसको समझना चाहिए, उसको भी इतना नहीं समझता, लेकिन एक मशीन को समझाना, सोचो कितना डिफिकल्ट होगा। बट दैट इज ऑल्सो बिकेम पॉसिबल ड्यू टू एआई। तो क्या प्रॉब्लम्स है, लेट्स सी। ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि हम देखने वाले, डिफिकल्टीज इन NLU, that is natural language understanding. So NL has an extremely reach from an infrastructure. It is very ambiguous. There can be different levels of ambiguity. Now ambiguous का मतलब होता है confusing, right? तो बहुत सारे confusions हो सकते हैं, right? एक मशीन, एक ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर सपोज कोई मुझे बोले इट इज कार्ड है, सो अगर सपोज मुझे नहीं पता है ये चीज कि कॉर्ड को यहाँ इंडिया में लोग कार्ड भी बोलते हैं, मतलब कुछ लोग बोलते हैं। आई एम नॉट टेलिंग, किसी को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, इट्स देयर वे ऑफ स्पीकिंग, दैट हैज नो प्रॉब्लम, उसमें कोई गलत बात नहीं। बिकॉज सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। कोई कोई वर्ड को कोई कोई WERE को वेयर को वर्ड बोलता है, कोई मतलब डिफरेंट वे है। लेकिन ये चीज कैसे उसको समझेगा, तो इसी में कंफ्यूजन होता है उसको, मशीन को भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बट नहीं होता। सोचो ये सब कंफ्यूजन हो सकते हैं, ये सब कंफ्यूजन होते थे, बट उस सब चीज को ओवरकम किया गया एनएलपी के थ्रू, एआई के थ्रू, एनएलपी के थ्रू। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लो सपोज इफ आई एम टॉकिंग, अगर सपोज मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर सपोज मैंने बोला किसी पर्सन को, प्लीज डू दिस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो दिस इज परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस, वेरी डिफरेंट। परफॉर्मेंस ऐसा वो डिटेक्ट होता है, बट उसको फिर करेक्ट वे में कैप्चर कर लेता है हमारा गूगल असिस्टेंट, हमारा जो एनएलपी है, एनएलपी मॉडल जो है, सिस्टम जो है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस, इसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ज्यादा कि एक्चुअली हमारा ये यूजर कहना क्या चाहता है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट इज दिस यूजर वांट्स टू सी, क्या कहना चाहता है ये। तो उसमें एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन होगा, राइट? तो लेट्स सी व्हाट आर डिफरेंट एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन, राइट? और कभी कभी सिमिलर वर्ड्स में भी कंफ्यूजन हो सकता है। सपोज मैंने बोला बोर्ड, जैसे सपोज मैंने बोला आई, ठीक है, फिर मैंने बोला आई, तो एक ह्यूमन को समझेगा नहीं कि किस आई की बात हो रही है। आई मतलब आई वाला आई है, मतलब सब जो ये होता है सब्जेक्ट, मतलब मैं, आई एम अ बॉय, आई एम डूइंग दिस, आई वो वाला है मतलब प्रोनाउन वाला, या फिर वो वाला है मतलब कि EYE मतलब हाँ ईयर वाला आई, सॉरी ईयर वाला बोल रहा हूँ, आंख वाला आई, राइट? ऐसे बहुत से सेंटेंस है जिनका मतलब सिमिलर साउंड है, सिमिलर मीनिंग, मीनिंग नहीं है, सिमिलर साउंड, सिमिलर स्पेलिंग्स ऑल्सो कहीं कहीं तो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका सिमिलर है, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट है, उनका वर्क अलग है, एक्शन अलग है, राइट? तो ये चीज में कंफ्यूजन हो सकता है अपने मॉडल को, लेकिन वो कंफ्यूजन कैसे दूर करता है? फर्स्ट इज लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। पहला जो कंफ्यूजन होता है वो होता है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी मतलब कि इट इज एट वेरी प्रिमिटिव लेवल सच एज वर्ड लेवल। तो ये बहुत प्रिमिटिव लेवल पे होता है, मतलब कि प्रिमिटिव लेवल मतलब कि सिर्फ वर्ड में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मतलब एनएलपी को अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो किसमें होगी? समझने में, वर्ड्स को समझने में। सेंटेंस तो छोड़ो, बात की बात है, पहले वर्ड्स से शुरुआत करते हैं। वर्ड्स समझने में मुश्किल होती है। हमने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल ट्रीटिंग द वर्ड बोर्ड एज नाउन और वर्ब। अभी उसको समझेगा नहीं कि बोर्ड को नाउन या वर्ब किस फॉर्म में हम उसको ट्रीट करें। लाइक सपोज मैंने उसको बोला आंसर, और फिर मैंने बोला आंसर दिस क्वेश्चन, शी हैज आंसर, ही हैज आंसर ऑल द क्वेश्चन, उसके बाद सारे क्वेश्चन का जवाब है। और मैं इन्हें बोला कि आंसर इस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दो। तो हियर द वर्ड एंड द मीनिंग्स आर सेम एट बोथ द प्लेस, मतलब आंसर आंसर, आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हो रहा है हमारा आंसर, और आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्या है, एक नाउन यूज हो रहा है, राइट? तो दोनों जगह वर्ड सेम है, लेकिन वो डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस, उनका जो यूज है, यूसेज है, वो डिफरेंट है, वो अलग हो जा रहा है, राइट? तो दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाई यहाँ पे हम लोगों ने बोला बोर्ड को हम नाउन की तरह या वर्ब की तरह ट्रीट करें, ये उसको कैसे मालूम पड़ेगा, राइट? तो वो समझ में आना चाहिए, राइट? कि अगर मान लो मैंने बोला सॉन्ग, ओके, या फिर मैंने बोला सॉन्ग से नहीं बोलते, और भी एग्जाम्पल हैं, देयर बहुत सारे, देयर मल्टीपल एग्जाम्पल्स। यहाँ पे उन्होंने बोर्ड के एग्जाम्पल दिए, राइट? बोर्ड, यहाँ पे उन्होंने बोर्ड के एग्जाम्पल दिए। बोर्ड मतलब कि एक तो बोर्ड होता है जो कि ब्लैक बोर्ड वाला बोर्ड होता है, राइट? तो एक नाउन हो गया। दूसरा बोर्ड क्या होता है कि जो हम लोग का बोर्डिंग होता है, राइट? मतलब ट्रेन वगैरह या फिर फ्लाइट वगैरह बोर्ड होती है, तो यहाँ पे वर्ब हो गया वो। तो अगेन एक सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है एंड डिफरेंट यूज है उसका, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड द सेंटेंस। वो सेंटेंस और कंडीशन मालूम पड़ी, राइट? तो ऐसे ही कंफ्यूजन हो सकती है इस चीज को लेकर, है इसको बोलते हैं लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, मतलब वर्ड से रिलेटेड कंफ्यूजन होती है, तो इट इज रिलेटेड टू वर्ड्स एम्बिग्यूटी, दैट मींस वर्ड लेवल पे। देन नेक्स्ट सेंटेंस लेवल, सेंटेंस कैन बी पास्ड इन डिफरेंट वेज। और सेंटेंस मैंने पहले बताया सेंटेंस इज नथिंग बट सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सेंटेंस, एंड सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। तो सिंटेक्स में यहाँ पे सिंटेक्स लेवल एम्बिग्यूटी हम बात कर रहे हैं, अगर सेंटेंस कैन बी पास इन डिफरेंट वेज, ओके, एक सेंटेंस को डिफरेंट वे में पास कर सकते हैं। पास मतलब उसको यू कैन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, ही लिफ्टेड द बिटल विद रेड कैप, डिड ही यूज द कैप टू लिफ्ट द बिटल, और ही लिफ्टेड अ बिटल दैट हैड रेड कैप। ऑफ कोर्स एक चीज को हम अलग अलग वे में बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया, बट अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ कि शी रोट अ लेटर, या फिर शी हैज रिटन अ लेटर टू हिज फादर, ओके। उसके बाद अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। फॉर हिज फादर शी हैज रिटन अ लेटर, ओके। और वी कैन से अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं द लेटर विच वाज रिटन बाय हर वाज फॉर हिज फादर, सॉरी वाज फॉर हर फादर। तो मीन्स सेम सेंटेंस को डिफरेंट वे में बोल सकते हैं, राइट? सो वी कैन पास इन डिफरेंट वेज, ओके। वी कैन, सेम सेंटेंस कैन बी पास इन डिफरेंट वेज, राइट? फॉर एग्जांपल, he lifted the beetle with red cap, did he use the cap to lift the beetle, or he lifted a beetle with that had a red cap? तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ओके। जस्ट ओके। तो सेंटेंस हम डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते हैं, राइट? वी कैन प्रेडिक्ट मल्टीपल मीनिंग्स फ्रॉम अ सिंगल सेंटेंस, ओके। देन रेफरेंस, नाउ नेक्स्ट है रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी। रेफरेंशियल एम्बिग्यूटी रेफरिंग टू द समथिंग यूजिंग प्रोनाउंस, ओके। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो प्रोनाउन की वजह से, मैंने एग्जांपल दिया था अमिताभ बच्चन वाला, कि अगर मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा तो इट विल आंसर अबाउट द अमिताभ बच्चन, अगेन इफ आई आस्क the question about the same person but without using his or her name, but I'm just using he or she or whatever that pronoun, so that time also it understands, so again उसको confusion क्यों नहीं होती है? तो वो भी इसी की वजह से हटाया, तो अंडरस्टैंड करने में उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, दैट मीन्स वो भी एनएलपी ने हटाया, राइट? लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो रेफरेंस समथिंग यूजिंग प्रोनाउंस, राइट? ऐसी चीज रेफर करना जो कि प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसमें प्रोनाउन आते हैं, लाइक प्रोनाउन का मतलब होता है जिस नाउन की जगह यूज करते हैं हम, राइट? जैसा अगर सपोज मैंने बोला कि माय सपोज मैंने बोला कि माय प्रोफेसर नेम इज करण and he's very great. He teaches very well. He has done his MK, sorry, MTech with this and this college. So now, first on this first sentence, I have used a noun. That is the name of that my sir. That is Karan or whatever sir. But that later sentences, if you observe, or if you might have observed or you can noticed, तो वहाँ पे हमने हर बार नहीं लिखा that Karan sir has this, Karan sir has done this, Karan sir age is this, Karan sir teaches very well. No, he teaches very well, he has this, and blah blah blah. So means यहाँ पे मैंने instead of making use of noun, we have used pronoun, right? This is a good practice, okay, in English we talk. तो ये same practice हमें
मशीन को भी सिखानी चाहिए, राइट? मशीन ने भी सेम प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए। बार बार प्रोनाउन यूज करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट? एक सेंटेंस में हम प्रोनाउन एक बार लिखते हैं तो उससे रिलेटेड हम बाकी चीजें लिख सकते हैं यूजिंग, सॉरी, नाउन अगर एक बार हम यूज कर सकते हैं यूजिंग नाउन अगेन एंड अगेन इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो एक बार नाउन यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग वापस सिर्फ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं नाउन की जगह, ओके? उससे हमारा सेंटेंस भी कम पड़ जाएगा और वो एक्यूरेट लगता है, बराबर लगता है। अदरवाइज बार बार यूज करना इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट? एंड वी डोंट डू एक्चुअली। तो जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल रीमा वेंट टू गौरी। यहाँ पे रीमा जो है वो गई गौरी के पास। शी सेड आई एम टायर्ड। अभी यहाँ पे देखो क्लैरिटी नहीं सेंटेंस के अंदर, थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि किसकी वजह से, प्रोनाउन की वजह से। यहाँ पे बोलो रीमा वेंट टू गौरी, शी सेड आई एम टायर्ड। अभी यहाँ पे किसने बोला कि मैं टायर्ड हूँ, एग्जैक्टली कौन टायर्ड है? यहाँ पे उन्होंने शी यूज किया है। दोनों ही गर्ल है यहाँ पे, ओके? रीमा एंड गौरी बोथ आर गर्ल। नाउ हियर इट इज दिस वर्ड इज बीइंग सेड, she said, I am tired. Now, who said? Now, Rima went to Gauri. So, it could be possibility that it could be Rima, it could be Gauri. But who said exactly that I am tired? So, exactly who is tired here? So, we don't know. So, according to sentence, we can say, we might say कि हाँ रीमा ने बोला होगा, but what is the guarantee? It may happen कि Rima went to Gauri and Gauri might have said that I am tired. So here, this pronoun she, which they have used, that could be that can be for anything, for Rima also and for Gauri too, right? So exactly यहाँ पे एक confusion है. One input can mean different meanings, right? One input can have multiple meanings, right? कि she किसके लिए है यहाँ पे? Okay, for what? For which girl we are talking about? And many inputs can mean the same meaning thing. Also, this also can happen, right? One input can have multiple meanings. Many inputs can have same meaning. That is also the possibility, right? That we have seen, right? So this is about the different NLU problems. So you can say ambiguity. Then we have something called as NLP terminology. एनएलपी टर्मिनोलॉजी में फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फीम है, सिंटैक्स है, एंड सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स है, डिस्क्लोजर एंड वर्ड नॉलेज है। तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव इन द एनएलपी टर्मिनोलॉजी। जैसे हमारा एआई एजेंट टर्मिनोलॉजी वगैरह थी, वो सब चीजें थी, वैसे ही हमारा एनएलपी का भी टर्मिनोलॉजी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। So it is study of organizing sound systematically. Of course, it is a study of the organizing the sound systematically. मतलब phonology. Now see the word phono, morpho, morpheme, whatever. Last में we have used logy. तो जब भी logy आ जाता है, that means it is a study of something. Logy का मतलब होता है study of something. वो कुछ भी हो सकता है. It could be anything. It is not कि ऐसा ही रहेगा, वैसा रहेगा, ऐसा नहीं है. वो कुछ भी हो सकता है. That study could be of anything, right? इसलिए उसको बोलते हैं study of समथिंग। दैट मीन्स लॉजी मतलब स्टडी, हम लोग बोलते हैं ना बायोलॉजी, तो दैट मीन्स स्टडी ऑफ बायोलॉजी, सॉरी स्टडी ऑफ बायो, ओके, मतलब डाइवर्सिटी एंड ऑल। सो दैट इज वाई जियोलॉजी, राइट? तो ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसी फोनोलॉजी है, तो फोनोलॉजी का मतलब होता है इट इज स्टडी ऑर्गेनाइज साउंड सिस्टमेटिकली, मतलब साउंड को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम लोग फोनोलॉजी। दैट मीन्स साउंड अगर कोई आया है तो उसको सिस्टमेटिकली कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट? इट साउंड कैन बी एनीथिंग, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करना, उसको बोलते हैं साउंड सिस्टमेटिकली। सपोज मैंने उसको बोला कि गूगल सर्च फॉर मी अ केक, ठीक है? तो प्लीज सर्च अ केक फॉर मी, ऐसा नहीं बोला मैंने, फॉर मी सर्च अ केक, ऐसा मैंने उसको बोल दिया उल्टा पलटा करके। उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिकली, जिससे वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके, तो वो भी हमारा टर्मिनल फोनोलॉजी काम करता है। बिकॉज कई बार आपने देखा होगा हम सेंटेंस उल्टे पलटे बोलते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा अपने गूगल से, उल्टा पलटा करके हम बोलते हैं, बट वो एक करेक्टली लेकिन वो एनालाइज कर लेता है, राइट? उसको समझ जाता है कि हाँ क्या चाहता है ये बंदा, ठीक है? और इसको ये समझ आता है कि बंदा स्टूपिड है तभी ऐसे बोलता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। ना मॉर्फोलॉजी हम टर्म बायोलॉजी में बहुत बार वी माइट हैव हर्ड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, राइट? मॉर्फोलॉजी तो बायोलॉजी का टर्म है। सो बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ वर्ड फ्रॉम प्रिमिटिव मीनिंग फुल यूनिट। सो वर्ड्स को बनाना मीनिंग के अनुसार, ओके, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मतलब ये उसकी स्टडी है जहाँ पे हम वर्ड्स बनाते हैं, ओके, किससे? मीनिंगफुल यूनिट से। मतलब ब्रेक किया है हमने सेंटेंस को अलग अलग चीजों में, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को बना रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं बेसिकली हमारा बंदा। And we have morpheme. It is a primitive unit of meaning in a language. जो मीनिंग होती है लैंग्वेज में उसका एक छोटा सा यूनिट होता है। सिंटैक्स दैट वी नो इट इज रेफर्स टू अरेंजिंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। सिंटैक्स का मतलब सेंटेंस होता है, सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग। वी हैव ऑलरेडी सीन इन द यूनिट नंबर 3 लॉजिकल एजेंट्स। It refers to arranging the words to make a sentence. It also involves determining the structural role of the
word in the sentence and in the phrases. We have semantics, that we have something called as wait, okay. We have something called as semantics. It is concerned with the meaning of the words and how to combine the word into the meaningful phrases and sentences. Okay, so semantics का मतलब the meaning of the sentence का और किस तरह से उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं meaningful phrases में, मतलब paragraphs and sentences में. Okay, मतलब एक sentence है multiple sentence. Pragmatic, it deals with the using and understanding sentences in different situations and how interpretation of sentences affected. Pragmatic का मतलब होता है कि हमारा मॉडल के थ्रू किस वो सेंटेंस किस वे में समझ रहा है उस सेंटेंस को, मतलब कि वो डिफरेंट सिचुएशन के अंदर किस तरह समझ रहा है. लाइक एक सेंटेंस का मतलब हो सकता है, मतलब एक सेंटेंस का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन के अनुसार, राइट. मतलब सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो मीनिंग है वो चेंज हो सकता है, राइट. प्रैग्मेटिक्स में वो चेंज हो सकता है कि नहीं, डिफरेंट हो सकता है कि नहीं, सब कुछ हो सकता है. कैसे हो सकता है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सपोज यहाँ पे मैंने बोला डिफरेंट सिचुएशन के साथ, सपोज और मैंने यहाँ पे बोला नो, सपोज मैं गुस्से में हूँ एंड आई सेड आई डोंट वांट टू ईट. ठीक है, ये एक हो गया सिचुएशन, गुस्से की वजह से मेरा टोन ऐसा निकला. फिर मैंने सेम सेंटेंस बोला आई डोंट वांट टू ईट एकदम कामली. मैंने इसलिए बोला इस बार क्योंकि मेरा मन नहीं है, मेरा पेट भरा है, इसलिए मैंने बोला आई डोंट वांट टू ईट. अगेन सेम सेंटेंस और सिचुएशन यहाँ पे अलग है. यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि मुझे भूख नहीं है. ठीक है, उसके बाद मेरा उपवास है, आई डोंट वांट टू ईट. फिर मुझे वस्तु को खिलाया, ज़्यादा खा लिया, आई डोंट वांट टू ईट. ओके, या फिर मैं बहुत दुखी हूँ, आई डोंट वांट टू ईट यार. सो मीन्स हियर द सेम सेंटेंस हैव द एक्चुअल मीनिंग इज सेम बट इट इज depending upon the different situations and it has different tones, right. गुस्से में अलग बोलेगा कोई बंदा, आई डोंट वांट इट ऐसा, आई डोंट वांट यार निकलो चलो भागो यहाँ से, गो जस्ट स्टे अवे फॉरगेट अबाउट इट, आई डोंट वांट इट एट ऑल, ऐसा सब बोल के बस हो गया. तो मीन्स यहाँ पे टोन मैटर करता है, ऑफकोर्स इंटरप्रेट कैसे के सेंटेंस को. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, discourse, it deals with how the immediately preceding sentence can affect the interpretation of the next sentence. Okay, discourse का मतलब होता है कि जो हमारा पुराना सेंटेंस है वो किस तरह से आगे के सेंटेंस को अफेक्ट कर सकता है, राइट. लाइक सपोज एक सेंटेंस मैंने बोला, उसके आगे जो सेंटेंस बोलूंगा उसमें इस सेंटेंस का क्या रोल है. ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ले सकते हैं कि जैसे मैंने यही बोला अमिताभ बच्चन वाले, तो प्रीवियस सेंटेंस जो है हमारा, वो सेंटेंस किस तरह से अफेक्ट करेगा नेक्स्ट सेंटेंस को इंटरप्रेट करने में. तो ऑफकोर्स जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस यूज किया है नाउन, तो ये नाउन की वजह से नेक्स्ट सेंटेंस में इंटरप्रिटेशन होगा कि ये बंदा जो है सेम पर्सन के बारे में बात कर रहा है. लाइक अगर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा हुई अमिताभ बच्चन एंड सेकंड टाइम मैंने आस्क व्हाट इज हिज एज, तो वहाँ पे वो हिज को रिप्लेस वो हिज वहाँ पे लिखा, समझ जाए कि प्रीसीडिंग सेंटेंस में उसने अमिताभ बच्चन के बारे में बात की थी, तो उसकी वजह से ये इंटरप्रेट होता है कि ये सेंटेंस भी उसके विषय में ही वो पूछ रहा होगा. ओके, वर्ल्ड नॉलेज, इट इंक्लूड्स द जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड. Now the different steps in NLP. Now what are the steps involved in NLP? There are total 5 general steps which are involved in NLP. Okay, you will see that steps. Okay, first step is lexical analysis. It involves identifying and analyzing the structure of the words. Okay, and lexical analysis का मतलब होता है पहले तो पहचानना है हमें कि क्या-क्या वर्ड है और उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको एनालाइज़ करना है वर्ड के स्ट्रक्चर को. लेक्सिकन ऑफ द लैंग्वेज मीन्स द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज. लेक्सिकल एनालिसिस इज डिवाइडिंग द होल चंक ऑफ द टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ्स, सेंटेंस एंड वर्ड्स. तो जो भी हमने डिफरेंट जो वर्ड्स जो है हमने उसको डिवाइड किया डिफरेंट चंक्स में, चंक्स मतलब स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक किया, उसको एक साथ हम लोग को पैराग्राफ में हमें वो करना है. ओके, एंड सेंटेंस में वर्ड्स में हमें डालना है. देन सिंटैक्टिक एनालिसिस, उसको पार्सिंग भी बोलते हैं. इट इन्वॉल्व एनालिसिस ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस फॉर ग्रामर एंड अरेंजिंग द वर्ड इन अ मैनर. तो यहाँ पे ग्रामर हम चेक करते हैं बराबर कि बराबर ग्रामर यूज किया है या नहीं. ओके, शी के साथ क्या है, मतलब अगर गर्ल के बारे में बात हो तो शी यूज होना चाहिए ग्रामर, और अगर मान लो अगर इज आ रहा है तो आई एन जी यूज होना चाहिए, अगर मान लो हैज है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए. मतलब ऑल दैट ग्रामेटिकल प्रॉब्लम एक प्रॉपर मैनर में उसको वर्ड करता है जो कि कुछ रिलेशन बताते हैं वर्ड्स के बीच में, राइट. ऑफकोर्स अगर मैंने बोला प्लीज सेट द अलार्म, तो इन सब वर्ड्स के बीच में सेट, अलार्म, ओके, एट 9:30 AM, ये सब के बीच में रिलेशन है, राइट. सेट का रिलेशन अलार्म से, क्यों, क्योंकि अलार्म सेट का रिलेशन क्या है अलार्म से, अलार्म सेट करना है हमें, और अलार्म का सेट से रिलेशन है कि अलार्म कि मुझे कौन सेट करने वाला है, दिस वर्ड सेट. ओके, और फिर सेट और अलार्म का रिलेशन किसके साथ, 9:30 AM के साथ, मतलब कि एट का रिलेशन क्या है कि मतलब 9:30 AM पे मुझे लगना है, राइट. तो ये सब चीजें क्या है यहाँ पे पार्सिंग है. तो वो मैंने यहाँ पे बोला द वर्ड इन द मैनर दैट शोज द रिलेशन वो वर्ड्स द
सेंटेंस सच एज द स्कूल गोज टू बॉय इज रिजेक्टेड बाय इंग्लिश सिंटैक्टिक एनालिसिस। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं, वो सेंटेंस को एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना। ओके, पार्सिंग दैट मींस टू कन्वर्ट योर सेंटेंस, और यू कैन से टू अरेंज योर सेंटेंस इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, इन अ मीनिंगफुल फ्रेज। जैसे स्कूल गोज टू बॉय, ये ऐसा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, ये गलत है सेंटेंस, इसका मीनिंग गलत है, बिकॉज ग्रामर ही नहीं है, ग्रामर ही रॉन्ग है इसका, एकदम गलत वे, गलत यूज है इसका, राइट? दैट वे दिस विल बी रिजेक्टेड। ओके, डिफरेंट इसके ये स्टेप्स एनएलपी के। एंड वी हैव सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक का मतलब मीनिंग। अभी इट ड्रॉज द एग्जैक्ट मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। मतलब टेक्स्ट जो भी बोला गया है, मैंने जो भी उसको बोला है, उससे एग्जैक्ट वो मीनिंग निकालता है कि क्या बोलना चाह रहा है यूजर। तो मैंने बोला कि मैंने उसको पूछा प्लीज सेट द अलार्म एट 9:38, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? अलार्म सेट करो। तो अलार्म लगाने का वो जो भी है उसके अंदर डेटा, वो यूज करके वो अलार्म लगा देगा बिना कुछ हाथ लगाए, अपने आप हो जाएगा सब काम। द टेक्स्ट इज चेक फॉर मीनिंगफुलनेस। इट इज डन बाय मैपिंग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स इन टास्क फॉर्मेट। तो ये कैसे होता है? मैप करने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस को, हर एक वर्ड जो होते हैं सेंटेंस में, उसको हम जोड़ते हैं और उससे फिर एक मीनिंग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। दिस ग्रेट सेंटेंस सच एज आई हॉट आइसक्रीम। ओके, ऑफ कोर्स ऐसे सेंटेंस को वो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये गलत है। हॉट आइसक्रीम, आइसक्रीम कैन नेवर बी हॉट, राइट? इवन हम ये सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। दिस कोर्स इंटीग्रेशन, द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जस्ट बिफोर इट। जिससे मैंने बताया था कि जो इसके जो दो सेंटेंस मैंने बोला, तो ऐसा हो सकता है कि एक सेंटेंस जो है उसका जो दूसरा सेंटेंस मैंने बोला उसका मीनिंग पहले सेंटेंस के बेस पे डिपेंड हो। ठीक है, इन एडिशन इट आल्सो ब्रिंग्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग सेंटेंसेस। Pragmatic analysis during this what was said in is reinterpreted on the what is actually meant. Okay, मतलब क्या बोला गया था और क्या इंटरप्रेट हुआ। मतलब सपोज मैंने उसको बोला कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने एकदम कामली बोला, लेकिन उसको लगा मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, तो उसने पानी नहीं दिया, कुछ और दे दिया। ओके, so it is like that. It involves deriving those aspects of language which require real world knowledge. And we have implementation aspects of syntactic analysis. There are a number of algorithms researchers we have developed for syntactic analysis, but we consider only few of them. सिंपल मेथड्स है यहाँ पे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे दिखाया है सिंटैक्टिक एनालिसिस का। तो कुछ एल्गोरिथम यहाँ पे यूज करते हैं, उसमें कुछ यहाँ पे उन्होंने बताया है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, टॉप डाउन पार्सर यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं, सपोज यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पहला है। इट इज अ ग्रामर दैट कंसिस्ट, ओके जस्ट वेट,